तारीफ का मोहताज नहीं है। आज की इस सरजमीन पर 2025-26 के तालीमी साल में कन्वर्ली एजुकेशन सोसाइटी ने यहाँ पर नेशनल कॉन्वेंट स्कूल का जो अभी हम यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी कलील मुद्दत में किया है। तो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में बिलखुसूस इस प्रोग्राम की सदारत संभाले हुए यहाँ के एक बहुत ही सरगर्म और इसी स्कूल और इसी गांव में पढ़कर इस स्कूल में पढ़कर इस गांव में अपने खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर साहब का अगर ये काम कन्वर्ली वालों को पसंद है तो एक मर्तबा इस कमेटी के सदर के लिए जोरदार तालियां। बिलखुसूस ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಡೈಟಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಣಗಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ನಂತರವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರಡು ಸರ್ವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಯ ಯಾವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಉದ್ಭವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವಂತಹ ಕನ್ವಳ್ಳಿ, ಈ ಕನ್ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ರಜಾಯ ಮುಸ್ತಫಾ ಇರ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಮಾತ್ ಇರ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಜಮಾತಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 1200ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಣಗಾರ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ मोस्टली 2000क्किंत जास्ती जना इवत्तिदारे। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ फरमा अजीज माएँ और जिम्मेदार वालिदैन, नौजवान, प्यारे बच्चों और यहाँ के डेडिकेटेड असातिज़ाए कराम, फिर एक मर्तबा कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो रखें, मेरे लिए टाइम जो दिया गया है 20 से 25 मिनट, शायद मैं मुकम्मल अपनी बात इस स्टेज पर दे नहीं सकता। अगर कोई एक पीटीएम की मीटिंग है, कोई एक पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग है, तो इंशाअल्लाह मैं मवाद आप तक पहुंचाने की कभी अगर इंशाअल्लाह वक्त मिला तो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इनकी मोहब्बतों को सलाम, इनकी दावत को मैं सलाम कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके गांव में बहुत बेहतरीन खिदमत सरंजाम देने वाले मेरे साथ पड़े हुए मेरे दोस्त अब्दुल रहमान दोड़मनी, मोहम्मद इकबाल साहब दोड़मनी, मोहम्मद अतीक दोड़मनी, जो इन लोगों के साथ काम किए हैं ಸರ್, ಅದರದ್ದು ನತೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, मैं बोलूं दरख्तों से ताल्लुक का हुनर तो देख ले ऐ इंसान, दरख्तों से ताल्लुक का हुनर तो देख ले ऐ इंसान, जड़ जख्म में लगते हैं टहनियां सूख जाते हैं। ये बात सच्ची है तो एक मरतबा जोरदार तालियां मार। तो दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले जो सुणगार और राउडूर और इनकी मुकम्मल टीम ने जो जड़ों को मजबूत करने का काम किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन कहता है सदर साहब, आपको लेते हुए, आपकी पूरी टीम को लेते हुए मैं इन टीम वालों के लिए कहूंगा, उड़ान वालों, उड़ानों पे अब वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। तवज्जो तमाम लोगों से, उड़ान वालों, उड़ानों पे अब वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो सलामत रहे इन लड़कों की ये टीम, दुआ करो सलामत रहे इनकी ये मुकम्मल टीम, ये एक टीम कई टीमों पे भारी है।
کہ ایک ٹیم کئی ٹیموں پہ بھاری ہے. الحمدللہ میرے ہوش و حواس کھو رہے تھے. ہمارے یلگت سر، ہمارے کلے دیور سر سے میں بس یہی بات کر رہا تھا، سر جو ہمارے قوم کو مستقبل کی ضرورت ہے، جو ہمارے قوم کو فیوچر کی ضرورت ہے، الحمدللہ آج اس LED پردے پر 29 منٹ 32 سیکنڈ کے اس ویڈیو کو ان لوگوں نے پیش کر کے آپ لوگوں کے لیے قوم کا ایک آئینہ، ایک فیوچر پیش کیا ہے. ان کی محنتوں کو اور ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجائیں. تو اس موقع پر میں ہندوستان کے مشہور شاعر اور ہندوستان کے ایک بہترین شخصیت، ان کے 2 اشعار پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں. 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، انشاءاللہ اسی ٹائم پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہوں، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. خدا نے حسن دیا ہے تو حسن کی حفاظت کر. خدا پر بچوں کے حوصلوں میں ایک پر لگا کر شاہین جیسی پرواز کو صرف زمین پر بیٹھنا نہیں، زمین پر کھڑنا سکھایا. یہ بات سچی ہے تو زوردار تالیاں ماریں. اور یہاں پر ان بچوں کو انہوں نے صرف کھڑنا نہیں، الحمدللہ الحمدللہ ان کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر یقین لگتا ہے یہاں پر ان بچوں کو انہوں نے دوڑنا بھی سکھایا ہے، دوڑنا بھی سکھایا ہے. اور یقین کہتا ہے ان بچوں کو یہاں پر انہوں نے صرف دوڑنا نہیں بلکہ الحمدللہ کمپٹیشن کرنے کا جذبہ اور مقابلہ کرنے کا ایک سلیقہ اور ہنر بھی دیا ہے، ہنر بھی دیا ہے. اور یقین کہتا ہے یہ بچے مستقبل میں کوا، طوطا، کوئی اور پرندہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ اے کنوڑی والوں کہتا ہوں جو بچے آج یہاں پر 84 تھے، 99 بنے، آج 100 بنے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس میں سے 0 نکال دو، 10 بچے تو وقت کے IAS آفیسر بنیں گے، 10 بچے تو ہری انک کا پین اپنے جیب میں رکھے ہوئے نکلیں گے. ضرورت نہیں لڑکا اور لڑکی کی. اے کنوڑی والوں اپنی دولت پہ اتراتے ہو، اپنے تجارت پہ اتراتے ہو، لیکن اتراتے ہو تو آج سے 10 سال کے بعد کو فیوچر کو لے کر اترانے لگو. آج کی دولت پہ اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کے 10 سال بعد اگر آپ کی قوم، آپ کے بچے پڑھ لکھ کر جب ہری انک کا پین اپنے جیب میں رکھتے ہوئے نکلیں گے نا، جب آپ کے بچے کی کوئی فائل کوئی ایک آدمی لے کر نکلے گا نا، آپ کے گاؤں کے بچے جو آج طبیب، وقت کا ایک شفا دینے والا ایک ڈاکٹر بن کر کام کر رہے ہیں نا، میرا یقین کہتا ہے آج گاؤں میں 2 3 4 ڈاکٹر ہیں. میں نے مقبول صاحب سے پوچھا یہاں پر کل کتنے سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے کہا سر 24 سے 25 ہوں گے. یقین کہتا ہے اے کنوڑی والوں تمام ذمہ داران، الحمدللہ اگر یہ بچے اسی فیوچر، اسی ٹیکنالوجی، اسی وے کے ساتھ اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے نا، الحمدللہ اس اسٹیج سے، اس اسکول سے وقت کا ایک APJ کلام بھی نکلے گا، وقت کی رضیہ سلطانہ بھی نکلے گی، اور یقین کہتا ہے ایک وقت کی رابعہ بصری بھی یہاں سے نکلے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان اسکول والوں نے جو یہاں پر آپ تماموں کو ایک جگہ جمانے کی جو کوشش کی ہے، یہاں پر جو آپ کے بچوں کو بہت سارے ہنر دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. ہم سے ایک ہفتے کا گھر سنبھالا نہیں جاتا. ایک گاؤں کے ذمہ دار آدمی کو وقت آنے پر پورے گاؤں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک جماعت والے کو کوئی ایک فیصلہ دینا وقت پر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن 100 بچوں کے فیوچر کو لے کر سر ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. قوم کے فیوچر کے یہ کھلونے ہیں, قوم کے فیوچر کے یہ انشاءاللہ آج زمین پر کام کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ اگر یہی تربیت, یہی ماحول, یہی ٹیکنالوجی میں بڑھیں گے نا, انشاءاللہ یہ بچے ضرور آسمانی دنیا کو چھین لیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئیے ایک مرتبہ ان لوگوں کے لیے اور ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجائیں. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا, نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا.
اے وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, اے وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, اے کنوڑی کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ اسی اسکول سے انشاءاللہ ایک وقت کا ہنر بولتا ہوا انسان نکلے گا. انشاءاللہ اس اسکول کو سلام, اس اسکول کی محنتوں کو سلام, یہاں کے اساتذہ کو سلام, اور سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو سلام کہ آپ لوگوں نے نیشنل اسکول کو چنا ہے. ہاں, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ PUC ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ PUC ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು 3ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, मेरा यकीन कहता है, मेरी दिल से दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सदारत अगर इंशाल्लाह जगमगाएगी, आपके अंदर यूनिटी बरकरार रहेगी. अल्लाह ताला अगर आपसे फॉर्म का काम लेना चाहता है तो यकीन कहता है ये स्कूल इंशाल्लाह सिल्वर जुबली भी मनाएगी. इंशाल्लाह ये स्कूल गोल्डन जुबली भी मनाएगी. इंशाल्लाह ये स्कूल पूरे जिले हावेरी नहीं बल्कि रियासत में अपना नाम करेगी. क्योंकि इससे ताल्लुक रखते हुए मैं बस एक बात कहूं, यहाँ की स्कूल से ताल्लुक रखते हुए अभी बैठे हुए मैंने इस बात को यहाँ पर कहा है, यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है. तवज्जो, पूरी कमेटी वालों की तवज्जो. ये नन्हे कदम जब चलना सीखते हो यहाँ, ये नन्हे कदम जब चलना सीखते हैं यहाँ, रोशन हो जाती है हर राहे जहां यहाँ, रोशन हो जाती है हर राहे जहां यहाँ. इल्म की खुशबू से महकता है हर फूल, इल्म की खुशबू से महकता है हर फूल. नेशनल कॉन्वेंट में है मुस्तकबिल का असूल, नेशनल कॉन्वेंट में है मुस्तकबिल का उसूल. इनके हौसलों को और बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, नहीं उखाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में. आज यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल खोलकर इन लोगों ने आपके बच्चों को उखाब जैसी उड़ान लगाने की जो मिन्नत ठानी है ना, इनके हौसलों को हौसला बख्शने के लिए आखिर में एक बात कहूं, यहाँ हर मुस्कान में उम्मीद छुपी है, यहाँ के हर बच्चे के मुस्कान में उम्मीद छुपी है. हर मासूम आंख में दुनिया नहीं होती है, हर मासूम आंख में नई दुनिया होती है. नेशनल कॉन्वेंट ने प्यार का आंगन, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल है प्यार का आंगन, जहां बचपन बनता है रोशन सा गुलशन, जहां बचपन बनता है रोशन सा गुलशन. यहाँ पर बच्चों के बचपन को एक रोशन बनाने के लिए, उनके राह में दिया जलाने के लिए, क्योंकि फिक्र होना सबसे पहले जरूरी है. बोलते नहीं अल्लामा इकबाल, खुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है. इन लोगों की फिक्र और आपका जिक्र और अल्लाह का शुक्र अगर ये तीनों शामिल रहेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम इंशाअल्लाह वक्त का एक हथियार बनकर निकलेगी. आप सोचेंगे सर ऐसी स्कूल में पढ़ने से क्या होगा, बाप मिर्चा का थैला लेकर निकला था, मैं भी लेकर निकलूंगा सर बेटियां क्या सर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या कोई वो हुबली के अंजुमन कॉलेज जाएंगे, क्या कोई KLE कॉलेज को जाएंगे, क्या बेंगलुरु की कोई अलमीन कॉलेज को जाएंगे, क्या कोई बड़ा काम क्या करेंगे सर. मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि वक्त 2000 का चला गया, आज 2026 है. यहाँ पर जो बच्चों को तालीम दी जा रही है 2026 के बाद, 2027 के बाद वो गाँव के बड़े बनने वाले नहीं है. आज जो बच्चों को 2026 के कैलेंडर में यहाँ पर तालीम दी जा रही है, मेरा यकीन कहता है ये 2026 के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले 2040 और 2050 का मुकाबला करने के लिए, 2040 और 2050 का मुकाबला करने के लिए. ऐ माए, आपका जमाना और था, आपके पैदा हुए जो बच्चे आपके वतन से अल्लाह ताला की एक बड़ी नियामत, आपको माँ जैसा स्लेट, माँ जैसा प्लेट, माँ जैसा मर्तबा आपको मिला है, आपको बाप जैसा मर्तबा और मकाम मिला है. आपकी माएँ को शायद ऐसा माहौल नहीं था, आपके बाप, आपके वालिदैन, आपके सरपरस्त को शायद ऐसा माहौल नहीं था कि जिन लोगों ने, कि आपके वालिदैन ने आपको इसी स्कूल में नहीं पढ़ाया. लेकिन आज के वक्त की ये जरूरत है कि बच्चों को एक तरफ सबसे पहले दीन की तरबियत दी जाए, तो दूसरी तरफ दुनियाई तालीम का होना बेहद जरूरी है,
बेहद जरूरी है। सबसे पहले बच्चों को दीन की तरबियत दें, अखलाक की तरबियत दें, उसके बाद जरूरत है आप इसे एक कागज को अगर आप दुनिया की सर्टिफिकेट समझेंगे, दुनिया का एक कागज कहेंगे, लेकिन मेरा यकीन कहता है ये दुनिया के सामने कागज होगा, दुनिया के सामने सर्टिफिकेट होगा, लेकिन यकीन कहता है कि ये गुलामी को आजाद करने का हथियार है। फ्यूचर में गुलामी से आजाद होने का हथियार है। इसलिए आज हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट की जरूरत है, आज हमारे बच्चों को इनाम और इकराम की जरूरत है। इसीलिए शायर के एक दो अशआर को मैं आपके रूबरू पढ़ूं, अगर आपका इंशाल्लाह इसने साथ रहा। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। बहुत आसान अल्फाज है, आप समझ जाएंगे। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। जो कौम का आगाज इक़रा से हुआ था, जो कौम की पहचान किताब से हुआ करती थी, आज उस कौम की पहचान उसकी हालत से हुआ कर रही है। मैं गुजारिश करता हूं तमाम लोगों से कि बराए करम इस वक्त की जरूरत को समझें। वक्त की जरूरत को समझते हुए गुजारिश है कि आपके बच्चों को, हाँ हम तालीम में दाखिला तो लेते हैं सर, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ HPS ಸ್ಕೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. 7ನೇ ನಂತರ ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ये जो ड्रॉप आउट है, ये आउट ऑफ स्टूडेंट स्कूल जो चिल्ड्रन है, ये हमारे कौम के लिए तालीम की तकमील बहुत जरूरी है। तालीम में दाखिला जितना इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपने एक अच्छे इरादे के साथ एक अच्छे इदारे को चुना, एक अच्छे इरादे के साथ एक अच्छे इदारे को चुना, यहां पर अगर आपकी मोहब्बत शामिल रही, यहां पर आपकी मेहनत शामिल रही, यहां पर आपकी कुर्बानी शामिल रही, यहां पर आपका जुनून और पैशन शामिल रहा, इंशाअल्लाह, और सब्र के साथ आपके बच्चे का नतीजा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे तालीम में दाखिले के बाद जब तालीम की तकमील करेंगे ना, मेरा यकीन कहता है कनवल्ली के गली गली में डॉक्टर मिलेंगे, कनवल्ली के गली गली में इंजीनियर मिलेंगे, कनवल्ली के गली गली में इंशाअल्लाह जो रोजगार देने वाले नहीं बनेंगे बल्कि रोजगार लेने वाले नहीं बनेंगे बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। ಸರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೋಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್, 100% ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಂತಹ ಛಲ, ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ, एक माँ और बाप बनकर अगर हम उसे नहीं पहचानेंगे ना तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल बहुत बड़ा दर्दनाक होगा. कहते हैं नहीं, आंखें खराब हो गए बच्चे पालकर, आंखें खराब हो गए बच्चे पालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकालकर. जीते जी बाप का एक चश्मा न ला सके, जीते जी बाप का एक चश्मा न ला सके, मरने के बाद इसी चश्मे को रखते हैं संभाल कर.
जरूरत नहीं है हमें ऐसे मुस्तकबिल के कनवल्ली के बच्चों की। हमें जरूरत है कि माँ उस वक्त भी रोती थी, किस लिए? कि बच्चा नहीं खाना खाया है। आज भी माँ रोती है इसलिए कि बच्चा खाना नहीं देता है। कौम को ऐसे नौजवानों की, कौम को ऐसे छोटे बच्चों की जरूरत नहीं है। मेरा यकीन कहता है अगर आप इस स्कूल की जगह की जो अहम जरूरत है, अगर इस जरूरत को आप तकमील करेंगे ना, इंशाअल्लाह सुणगार सर ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, 100% ಆಗಬಹುದು। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಲ್ಲ, चुटकी एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ 2 उंगलियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर पेरेंट्स, टीचर्स और कमेटी का अगर अच्छा इंटरेक्शन रहा, अगर घुल मेल रहा, इंशाअल्लाह ये स्कूल, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ पूरे जितने भी लोग बैठे हैं, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था उस वक्त सर सैयद अहमद खां को पत्थर से मारा गया था, बुरा भला कहा गया था। लेकिन आप जानते हैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है। जो लोग मदरसा खोलते हैं उन्होंने इल्म का दरिया जलाया है, इल्म का एक दिया जलाया है, इल्म के दरिया को बहाया है। जो लोग एक दीन के साथ दुनिया ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ को ज्यादा आगे लाना है। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು। क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं, वरना दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। दुनिया को अगर बच्चे बोलने का सीखेंगे, बच्चों में सोच विचार का मादा आएगा, बच्चों के पास शेयरिंग एक्सपीरियंस होगा, अगर ऐसा स्टेज करेज रहेगा, उनके पास जुनून रहेगा ना, इंशाअल्लाह बच्चे आज जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज से 20-25 साल के बाद यही खिलती कलियां वक्त में इंशाअल्लाह एक बाग के खिलते हुए गुलाब की तरह, एक गुलदान के खूबसूरत चीज बनकर सबकी लोगों की जाजिबे नजर पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये यकीन कहता है। मैं गुजारिश करता हूं जितने जिम्मेदारान यहाँ पर बैठे हैं, एक बड़ा सपना लेकर, एक बहुत बड़ा कनवल्ली का मुस्तकबिल लेकर, जो नौजवान यहाँ पर आपके गांव में कमर बांध कर बैठे हैं, आप लोग इनका साथ दें। जरूरत नहीं कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन खजांची नहीं है, वो आपके गांव के बच्चे हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले जो छोटे छोटे कलियां हैं ना, इनके घर के रिश्तेदार के, इनके भांजे और इनके भतीजे नहीं हैं, ये कौम के खिलती कलियां हैं, जिन बच्चों को इन लोगों ने तालीम से आरास्ता करने की क्या है मिन्नत मांगी है। मैं गुजारिश करता हूं यहाँ के तमाम जिम्मेदारान से, आज के इस स्टेज से एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाएं, क्योंकि पॉजिटिव माइंड इज ए मिरेकल फॉर द फ्यूचर करके बोलते हैं। अगर आप एक मस्बत फ्यूचर लेकर यहां से निकलेंगे ना, इंशाअल्लाह आज से 2026 में जो ये 3 साल स्कूल बना रही ना, इंशाअल्लाह जब इसके पंजपन के 5 साल मुकम्मल होंगे, मेरा यकीन कहता है डॉक्टर साहब आप अपनी स्कूल में इंशाअल्लाह ये जश्न मनाएंगे, आप अपनी स्कूल में जश्न बनाएंगे जब तक आप लोगों का साथ रहेगा। मैं गुजारिश करता हूं इन लोगों के लिए सख्त से सख्त जगह की जरूरत है, सख्त से सख्त एक प्लेस की जरूरत है। जब लोग अपनी एक बिल्डिंग खास होगी, अपना एक इहाता होगा, जब अपना एक कमरा यहाँ पर कायम हो जाएगा ना, इंशाअल्लाह ये लोग खुलकर परफॉर्मेंस करेंगे, खुलकर अपने उसूलों को, अपने मिशन को इंशाअल्लाह आपके रूबरू रखने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कनवल्ली में जब मस्जिद बनाई गई, यहाँ पर दूसरे लोगों ने चंदा नहीं दिया, बल्कि आप लोगों ने यहाँ के मस्जिद को इंशाअल्लाह सिर्फ कनवल्ली नहीं बल्कि पूरे हावेरी जिले में एक मॉडल, एक नमूनतन मस्जिद बनाकर आने वाले मस्जिद का जो भी नमाजी होता है उसका दिल अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप लोगों ने जो एक मिसाल कायम की है यहाँ की मस्जिद बनाकर, मेरा यकीन कहता है जिस तरीके से मस्जिद के मीनारों से, क्योंकि हमारी कौम वो कौम है, हमारी कौम वो कौम है, मौजन साहब 5 वक्त भी आजाद देते, जरूरी नहीं कि हर गांव का इंसान क्या है नमाजी बन जाए, उनका काम क्या है अजान देना। हमारा काम अगर अल्लाह हमें तौफीक दिया है तो हम 5 वक्त की नमाज बाजबात इंशाअल्लाह अदा करेंगे। हमारा काम है, मेरा यकीन कहता है कि हमने सीखा है अजान सहरी से ये उसूल, लोग ख्वाबिदा ही सही पर हमको सदा देना, लोग ख्वाबिदा ही सही पर हमको सदा देना है। ये लोग आपसे मुस्तकबिल की आवाज मांग रहे हैं, मुस्तकबिल में तालीम की गूंज मांग रहे हैं। आप ये यकीन कर लें, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे,
आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जरूरत है आज बच्चों को बहुत बड़े आगे तालीम हासिल करते हुए अपने आप को तैयार करने की, क्योंकि हदीस कुदसी भी है नहीं, आज वो जमाना आ गया है जब ऊंट की रस्सी घोड़े की लगाम से बात करने लग जाए तो समझ लेना वक्त की निशानियों में से एक निशानी है। आज बच्चे अल्गोरिथम का मुकाबला करने वाले हैं, आज नेक्स्ट फ्यूचर में बच्चे रोबोट से मुकाबला करने वाले हैं, आज मुस्तकबिल के बच्चे कंप्यूटर से खेल खेलने वाले बच्चे हैं। किताबों का जमाना गया, बियॉन्ड द टेक्स्ट बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है जो आज इस स्कूल में काम चल रहा है। बच्चों को हम बोलते हैं बच्चों को क्या है, टीवी मत दिखाओ, हम बोलते हैं बच्चों के हाथ में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कंप्यूटर मोबाइल मत दो, लेकिन यहाँ पर बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए वक्त की जरूरत के हिसाब से जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके लिए अगर आप एक जगह के काम में अगर आप इंशाल्लाह मदद करेंगे ना, इंशाल्लाह कन्वर्ली में एक झूलता हुआ इंशाल्लाह एक बिल्डिंग, जब इमारत नेशनल लेवल स्कूल की जब बन जाएंगे ना, डॉक्टर साहब आप सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं रहेंगे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रहेंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पर बच्चों को एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं बल्कि सीबीएसई सुड़गा सर ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾಲರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ एक स्तून की जरूरत है, एक सुतून की जरूरत है, एक लंबे पिलर की जरूरत है। इन्होंने यहाँ पर एक मजबूत सुतून डालकर एक इमारत बनाने की जो उम्मीद और छला मांगी है ना, इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह यहाँ पर नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिलेबस भी यहाँ पर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो तालीम दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बाइलिंगुअल स्कूल भी है, यहाँ पर मौलाना आजाद स्कूल भी है, वहां पर उस हिसाब से तो तालीम जरूर वहां के टीचर्स मेहनत करेंगे, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से वक्त की जरूरत के हिसाब से आज ऐसे एक डेडिकेटेड कमेटी की जरूरत है, एक अच्छे माहौल की जरूरत है। हमें सिर्फ हमारे बच्चों को सिर्फ कन्वर्ली के अतराफ नहीं बल्कि बच्चे को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में जाकर अगर हमारे बच्चे पढ़ने वाले बनेंगे ना, इंशाल्लाह यकीन कहता है इस मेहराब से एक दरवाजा सदरंग निकलेगा। जब सफर खत्म होगा हर बच्चा खुश रंग निकलेगा। इन्हें अपनी ही कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो ये जिस बच्चे को छू लेंगे वो बच्चा खुश रंग निकलेगा, ये जिस बच्चे को छू लेंगे वो बच्चा खुश रंग निकलेगा इंशाल्लाह। वक्त के बहुत बड़े एक माहिर, क्योंकि आज बच्चों को सिर्फ हुनर की जरूरत नहीं है सदर साहब, जितने भी जिम्मेदारान हैं, अगर बच्चों को इल्म के साथ हुनर भी जरूरी है, ये दोनों चीजें लेकर निकलेंगे ना, बच्चे देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। ಕೊಡುವ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂತ ಸರ್, ತೆಗೊಳ್ಳೋದು ಕೈ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆ। ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇವತ್ತು 100 ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಿರಬಾರ್ದು। ವಿದ್ಯೆ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್। ಅದಕ್ಕೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾಯಂದಿರೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉರಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ। ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು burn like a sun, after that your students, your kids, your child will be शाइन लाइक ए सन अंत ಹೇಳ್ತಾರೆ। हमारे बच्चों को मुस्तकबिल का अगर इंशाल्लाह वो एक आफताब, मेहताब, चांद बनकर, सितारा बनकर चमकना है ना, आप बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो। जब आप बच्चों के साथ मिल बैठकर जिंदगी गुजारेंगे, बच्चे क्या पढ़ कर रही, क्या देख रही, क्या कर रही, इतनी जानकारी एक माँ पूछे, एक बाप पूछे तो इंशाल्लाह वो बच्चे हमारे साथ वक्त जब गुजारने वाले बन जाएंगे ना, वक्त में जब बुढ़ापे की जरूरत आएगी यही लड़का मेरी लाठी बन जाएगा, वही बेटी मेरे लिए नेक दुआएं करेगी। क्योंकि बोलते हैं नहीं, मरने के बाद भी औलाद की दुआएं काम आते हैं। सूर्य फातिहा व कुल से न भूलो मुझको, मेरे मरकू के सरहाने गुजरने वालों बोलते हैं। मेरा यकीन कहता है, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, हम बच्चों को बोलते हैं करो जी, करो जी, करो जी, करो जी, नहीं करेंगे, ये बात यकीन है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, अगर आप चाहें तो अपना सीधा हाथ ऊपर कर लें, तमाम लोग अपना हाथ सीधा ऊपर कर लें। All of you raise your hands। शहादत की उंगली आसमान पर कर लें, शहादत की उंगली
अपने हाथ को एक मरतबा घुमाएं, अपने हाथ को सामने लाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने हाथ को सामने लाएं। अपने हाथ को सामने लाने के बाद उंगली, शहादत की उंगली सामने करें। सामने करने के बाद इसी शहादत की उंगली को अपने नाक पर लगा लें। देखें कितने लोग कान पर लगा लें, कितने लोग नाक पर लगा लें, कितने लोग गाल पर लगा लें। यहां पर एक तजुर्बे की बात है। मैं जो बोले, मैं जैसे करे तुम्हें वैसे करे, मैं बोले जैसा नहीं करे। बिल्कुल ऐसे ही घरों में हमारे भी बच्चे, हमारे बच्चे जो हम बोलते हैं वो नहीं करते, जो हम करते हैं वही करते हैं। हम बोलने लग जाते हैं लेकिन करने वाले नहीं लगते हैं। गुजारिश है, जब माँ मुसल्ला बिछाकर बैठ जाएगी ना, बच्ची भी नमाज पढ़ने की आदी हो जाएगी। जब बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के मस्जिद की तरफ निकलेगा ना, बच्चा भी नमाज का आदी बन जाएगा। जब बच्चा अपना बस्ता उतार कर रखता है, सदर साहब, जब बच्चा अपना बस्ता उतार कर रखता है, आप उसे सिर्फ बस्ता मत नहीं समझना, वो मुस्तकबिल का ख्वाब उतार के रख रहा है। मुस्तकबिल का ख्वाब उतार कर रख रहा है। मुस्तकबिल का ख्वाब अपने घर में बच्चा रख रहा है। मैं गुजारिश करता हूं, कोई बच्चा चालाक है, कोई बच्चा हकीर है, ऐसे मत समझना। क्योंकि जब वक्त की जरूरत पड़ी, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बल्ब बनाने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को पैदा फरमाया। जब एक उड़ते हुए आसमान पर एरोप्लेन को बनाने की जरूरत पड़ी, अल्लाह ताला इस दुनिया में दो भाइयों को पैदा फरमाया, विल्बर राइट और आर्विल राइट बोल को। जब हिंदुस्तान को किसी मिसाइल मैन की जरूरत पड़ी, अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे एक अजीज शख्सियत एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा फरमाया। मेरा यकीन कहता है, अगर नेक्स्ट जरूरत अल्लाह ताला आपके गांव के बच्चों से कोई काम लेना है, तो हो सकता है वक्त का एक इसरो का साइंसदान इस स्कूल से निकलेगा, इस कन्वर्ली से निकलेगा। एक बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला तालिब इल्म अगर कन्वर्ली से निकलेगा, यहाँ पर डॉक्टरेट पदवी लेने वाले बने। आज हमारे कौम को सदर साहब अच्छे वकीलों की जरूरत है, अच्छे पुलिस और अच्छे कांस्टेबल की जरूरत है। आज हमारे देश को यहाँ से कन्वर्ली से अगर जाकर कोई सरहद पर एक सोल्जियर, एक फौजी बनकर काम कर रहा है, तो सब उसको सैल्यूट और सलाम करेंगे, सैल्यूट और सलाम करेंगे। ऐसे कौम के मुस्तकबिल मेमार का एक ड्रीम बन के निकलो। बिकॉज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम सेज दैट अ बिग ड्रीम, एक बहुत बड़ा ख्वाब अपने बच्चों के साथ लेके निकलो। जब एक बड़ा ख्वाब लेकर आप बच्चों के साथ निकलेंगे ना, बच्चों को अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करो। बच्चों को जब अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे ना, बच्चों के साथ हार्ड मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो। इंशाअल्लाह जब आपके पास सब्र होगा ना, बोलते हैं ना, सब्र और शुक्रगुजारी जन्नत की दो सवारी बोलते हैं। बच्चों अगर आप सब्र से यहाँ पर काम लेंगे ना, इंशाअल्लाह आपके बच्चे वक्त के एक होनहार इंसान बनकर सिर्फ कन्वर्ली के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंशाअल्लाह एक रोशन दिया बन जाएंगे, एक कंदील बन जाएंगे। आखिर में नज़म का एक शेर, टाइम इज ओवर, लास्ट में मैं अपनी नज़म का एक मिसरा सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। सैल्यूट और सलाम इस कॉन्वेंट को, यहाँ के डेडिकेटेड कमेटी को और यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को और तमाम पेरेंट्स को जिन्होंने एक गुलशन को यहाँ पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चुना है। मैं आखिर में अपनी बात कहूँ, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि चलो रेत निछोड़ी जाए, प्यास कहती है कि चलो रेत निछोड़ी जाए। अब अपने हिस्से में कोई समंदर नहीं आने वाला। हमें खुद करनी है अपने काबे की हिफाजत,
हमें खुद करनी है अपने काबे की हिफाजत। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। तुम पुकारोगे तो सहने हरम आएंगे, तुम पुकारोगे सहने हरम आएंगे। ये अलग बात है कि तादाद में कमाएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कमाएंगे। लेके आएंगे अपने हाथों में सदाकत के अलम। मैं इन बच्चों से ताल्लुक़ रखते हुए कह रहा हूं, मुस्तकबिल में ये बच्चे अपने हाथों में सच्चाई का एक परचम लेकर आएंगे, लेके आएंगे अपने हाथों में सदाकत का अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कमाएंगे। इस कॉन्वेंट स्कूल के लिए और एक मर्तबा जोरदार तालियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने मुझ जैसे नाचीज को यहाँ पर बुलाकर, शायद मैं 2 मिनट बोला, रौडूर सर हमारे अभी मरडूर सर बात करने वाले हैं, मैं आपका शायद ज्यादा वक्त दिया, ये समझते हुए आपकी तवज्जो को सलाम कहते हुए मेरे कहने में अगर कोई कमी हो गई हो तो रब की बारगाह में गिरिया गुजारी है, आप मुझे माफ करें। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं, एक गुलशने नेशनल स्कूल आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। Hello everyone, please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.